શું નામ છે મોટા ભાઈ તમારું? તપન બ્રહ્મભટ્ટ ઉર્ફે ટમી ટિક્કી બર્ગર. બરાબર, તો તમે અહીંયા બંધ કરાવવાની સત્તા છે તમારી પાસે? ના, મારા જોડે બંધ કરવાની સત્તા નથી, પણ અહીંયા જે રાત્રે રિવરફ્રન્ટ ઉપર જે ચાલે છે ને, તમે હમણાં પીરેલી હાલતમાં છો સાહેબ? ના, કોણ કહે છે? અવાજ આવે છે તમારા મોઢામાંથી. હા, તમારે અહીંયા જે વાળો ના ના, આઈ કાર્ડ આપો તમારું, લાવો સાહેબ. તમે આમની હાથે જો, આમના માટે ડ્યુટી કરો છો? મારા માટે ડ્યુટી કરો હે સાહેબ? હા, તમે આમના માટે ડ્યુટી કરો? આ પીરેલીમાં છે, આ ભાઈ પીરેલીમાં છે. રીઝન એટલું જ છે કે લાલા તમારું રીઝન તમે હમણાં સાલા નારા લગાવો. તમારું આઈ કાર્ડ આપો, ચાલો બોલાવી લો બધાને, બોલાવી લો I10 ને I20 ને બધાને. એ ભાઈ અહીંયા ગાડી મૂક, અહીંયા ચાલ આ બાજુ આવી જા. લા તારું આઈ કાર્ડ ક્યાં છે? હા, લા આઈ કાર્ડ લા, ચાલ બતાય. ગાડીમાં હું છે? દારૂ છે? વાસ આવે છે આટલી? હે, આ ગાડીમાં દારૂની બોટલ પડી છે, ગ્લાસ પડ્યા છે, ખાલી આ ચકનો પડ્યો છે. બરાબર, ગાડી નંબર લઈ લીધો. બધા વિડીયો ઉતારો ભાઈ. ગાડીમાં દારૂ છે, આ બોટલો પડી છે, અરે ગ્લાસ ને પડ્યા છે. બોલો બોલાવો, લગાવો લગાવો, તમે લગાવો. ચાલો તમારું કાર્ડ લાવો. પેલું આઈ કાર્ડ ક્યાં છે? લાવો આઈ કાર્ડ લાવો, આઈ કાર્ડ લાવો. તમે હમણાં સત્તા બતાડતા હતા તમારી અધિકારી, તો હવે તમારું આઈ કાર્ડ આપો. શેનું આઈ કાર્ડ આપું? તમે હમણાં કહો છો ને કે હું તમે કયામાંથી છો? લાવો ભાઈ કવલભાઈ પકડો છો, બરાબર પકડો. શેનું દારૂ પીધું? કોણ કહે છે દારૂ પીધું? અરે હમણાં વાંધો નહીં, આપણે બોલાવી લીધી છે. બોલાવી લો, બોલાવી લો. હા, બોલાવી લો, વાંધો નહીં, બોલાવી લો. બર્ગરની શોપ છે. હા, ક્યાં બર્ગરની શોપ? ક્યાં શોપ છે? બર્ગરની શોપ ક્યાં છે? બર્ગરની શોપ ક્યાં છે? કટિંગમાં મારી શોપ. હા, તો અહીંયા શું છે તમારે બંધ કરાવવાનું? તમને ટેકો આપ્યો છે સરકારે? ઠેકો કોને નથી ટેકો આપ્યો છે? કયા સાહેબ અહીંયા કઈ પોલીસ સ્ટેશન ની હદ લાગે છે? અમે આયા શાના માટે? અહીંયા તમે હેરાન કરો છો? ના, કોઈ હેરાન નથી કર્યો. પછી આ બધાને ભણાવી ના, હે? કોઈ હેરાન નથી કર્યું. मीडिया वाले ये भाई आए ले, देखो ये गाड़ी है, ये पुलिस वाले इनकी गाड़ी में गाड़ी ले पार्ट में फोन करने आएगी और गाड़ी ले गाड़ी ले गिलास पड़े आगे आगे गिलास में पड़े आगे इनका ये लगेगा गिलास है। उन लोगों को भगाया था, वो पीछे दुकान हम ले रहे ना भाई, उन लोग को नहीं, हमारे को भी तुमने बोला है। चले निकल, ये भाई ने मेरे को बोला है, चलो लिख लो। बोलो बोलो, ये आ रही दारू ની બોટલ है, ये आ रही दारू ની બોટલ, आ रही दारू ની બોટલ, आ रही दारू ની બોટલ લો સાહેબ, आ रही दारू ની બોટલ. આ દારૂ છે ભાઈ, આ દારૂ છે બરાબર. હા, એ ભાઈ ની પાસે લો, ભાઈ ની પાસે ફોટો. અરે આ ગાડી નંબર લો. ભાઈ આ તમારી ગાડીમાંથી બોટલ નીકળી. આ તો પહેલાની છે ભાઈ, પેલાની છે. બે મિનિટ પકડો પકડો. હાલો, આ બોટલ પહેલાની છે, તમે નશામાં નથી. ગ્લાસ અંદર પડ્યું છે હમણાં, મને ચેક કરી લો ભલે. ગ્લાસ પડ્યું છે. કામ કરો, ગાડી બંધ કરી દો યાર. આપણે સિવિલ જઈએ, જેડો ચેકઅપ કરાવો. ચલો જઈએ, ચલો એક્સેસ પર લઈ લો. કોઈ નહીં हमारी बैठक कैसे हम ઓન રેન્કિંગ માં છે ગાલી કલો ને બધે હા મેચ કરીએ ये बेसबॉल का डंडा આનો ઉપયોગ ક્યાં કરવાનો છે? બરોબર. दारू की बोतल का वो वहीं पड़ी इनके डैशबोर्ड के नीचे શું કર્યું લાને વહી કરી ના, મેં ખાલી મારે आके તોડફોડ पब्लिक થઈ को ને. गाली गलौज करने लगा, बोले मैं बजरंग बल वाला हूँ, सब गाली गलौज करके ना सब पब्लिक को फालतू का भगाने लगा। મારે દુકાન ઉપર बोले मैं बजरंग बल वाला हूँ, भले इनकी दुकान का है कुछ भी मैटर है, तो दुकान के अंदर से सीसीटीवी है। मैं बोले यहाँ बैठने का हक ही नहीं है तुम बोतल का पड़ी નહીં, એવું નથી કર્યું. गाड़ी का નહીં, એવું નથી बोतल કર્યું. हटा दो भाई का नहीं ये पड़ी है કોઈ બોટલ आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के रिवर फ्रंट हाउस पे एक जो है असामाजिक तत्वों के द्वारा लोग बैठे हुए थे, गर्मी का माहौल था और उन्हें वहाँ पर जो है अवैध तरीके से हटा दिया जा रहा था। इस मामले की जान जिस तरह से जो है सोहेल भाई को हुई और तुरंत ही वहाँ पर पहुँचते हैं लोगों को भगाया जाता था और आसपास के लोगों का ये भी मानना है कि शराब पिया हुआ वो शख्स वहाँ जो बैठे हुए लोग थे उनको हटा रहा था। क्या था पूरा मामला हम सोहेल शेख से जानते हैं और उसके साथ ही
इस मामले की जानकारी एसडीपीआई से अबरार पंजाबी को और एआईएमआईएम से अजीत सैयद को मिलती है, तुरंत ही वहाँ पर पहुँचते हैं। अब देखने की बात यह है कि अहमदाबाद में आने वाले दिनों में मुहर्रम जैसा त्यौहार है, 27 जुलाई को रथ यात्रा जैसा त्यौहार है। कौन है यह असामाजिक तत्व जो अहमदाबाद शहर का माहौल ख़राब करना चाहते हैं? अगर पुलिस यदि ऐसे मामलों में या कड़क धाराओं में ऐसे मामले में जो है फरियाद दर्ज करती है तो अहमदाबाद के माहौल को ख़राब करने वाले असामाजिक तत्वों को जल्द से जल्द हिरासत में लिया जा सकता है। इस मामले की जानकारी जो है रिवरफ्रंट पुलिस थाना में तो दी गई है, लेकिन आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि इस मामले में पुलिस किस गंभीरता से इस मामले को दर्ज करती है। क्या था पूरा मामला और क्या हुआ था वहाँ पर? भाई हम लोग वहाँ बैठे हुए थे रिवर फ्रंट पे। मेरा नाम शेख सोहेल अहमद है। हम लोग रिवर फ्रंट पे बैठे हुए थे, फैमिली भी थी, सब साथ में भी आगे पीछे बैठे हुए थे, ऐसे सारी फैमिलियाँ सब लेके बैठे हुए थे। ये भाई जो है ये वहाँ से गाड़ी में आए, गाड़ी को साइड में रखा, आगे इनके आगे कुछ पुलिस वाले जैसे होमगार्ड जिनका लेबल लगा हुआ था होमगार्ड थे, वो आगे चल रहे थे, ये पीछे चल रहे थे, मुँह ही उतार रहे थे और जितने भी वहाँ पब्लिक बैठी हुई थी उन सबको भगा रहे थे, चलो जाओ रिवर फ्रंट खाली करो खाली करो। तो हमने पुलिस वालों को जैसे आगे देखा जो कि होमगार्ड वाले थे, तो उनको देखने के बाद हमने भी उनका रिस्पेक्ट करके कि नहीं भाई पुलिस वाले भी हमारे को जाने का कह रहे, होमगार्ड वाले थे, तो हम लोग वहाँ से निकल गए कि भाई नहीं पुलिस वाले जाने, लेकिन वो तो जाने हम आगे चले गए, वो पूरे सबको भगा रहे थे, हम लोग भी सब साथ में थे तो हम लोग चले गए। लेकिन फिर रिटर्न आने के बाद कि यार इस तरह से कभी हुआ नहीं, हम लोग रोज़ रात को गर्मी में आके बैठते हैं, दिल्ली आके बैठते हैं, कि कभी ऐसा हुआ नहीं आज तक वहाँ। तो फिर से मैं दोबारा वहाँ आया, वहाँ आके देखा तो फिर वही शख्स जो था वो डंडा लेके फिर के सबको बता रहा था कि इधर से खाली करो। फिर मैंने उसको पूछा कि भैया आप कौन हो, आप अधिकारी हो, कौन हो, आपको सत्ता किसने दी है? तो वो मेरे को बता रहा है कि नहीं बस ये वो। फिर उसके बाद हमारे भी जो एसडीपीआई वाले जो रहते हैं और दूसरे भी 112 पे भी हमने फ़ोन किया और उसके बाद इनको भी किया और ये सब आए। उसके बाद वहाँ से 112 पुलिस प्रशासन ने भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया, वो हमको यहाँ लाए, उनको भी ले रिवर फ्रंट पे लेके आए, यहाँ बैठे, सारी बातचीत हुई, सारा लिखा हुआ उन्होंने सब चीज़ किया है। और दारू पिया हुआ हालत में था और उनकी गाड़ी के अंदर हमने दारू की बोतल भी दिया, ड्रिंक करते थे, वो ड्रिंक किया हुआ था। 2 शख्स टोटल 4 थे, लेकिन जब मैं गया उस टाइम पे पहले 4 थे, फिर 2 रहे गाड़ी में, तो वो 2 को इधर लेके आए, वो 2 जो दूसरे थे वो चले गए। ठीक है, इतना हुआ है। और आपने इसलिए ये कहा कि आप अधिकारी हो क्योंकि उनके साथ 3 होमगार्ड भी थे, तो आप ये समझे कि कहीं वो अधिकारी हो? हाँ, ये होमगार्ड वाले जो है वो आगे चल रहे थे, ये पीछे चल रहे थे और वाइट टी शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी, तो हमको लगा अधिकारी होंगे। लेकिन फिर उनकी गाड़ी पे मैंने गाड़ी नंबर देखा जो GJ8 पार्सिंग थी, तो मैं हमारे गुजरात में अगर है अधिकारी भी तो GJ18 होगी, तो वो नहीं था, तो मुझे और शक गया, तो मैं गाड़ी के पास गया, जाके उनसे पूछ रहा हूँ ये वो। फिर मैंने उनको देखा तो बास इनके स्मेल आ रही थी मुँह में से। मैंने कहा आप पिए हुए, आप कौन से अधिकार हो? मैंने उनका आई कार्ड मांगा कि आप आई कार्ड दो, तो उन्होंने आई कार्ड नहीं दिया। फिर उसके बाद उन्होंने फिर उनकी गाड़ी को देखा तो उसके अंदर से दारू की बोतल भी ड्रिंक करा, फिर वो सारी चीज़ें निकली और फिर उसके बाद इधर हम लोग आए। तो आपकी सूझबूझ से ये हो सका कि 112 पे आपने जब कॉल किया तो पुलिस तुरंत आई और वहाँ की जो गंभीरता थी उसको जो है पुलिस ने कंट्रोल में पुलिस ने कंट्रोल में किया। माहौल ख़राब हो सकता था क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अभी मुहर्रम है, रथ यात्रा है, हिंदू मुसलमान का जो हमारा भाईचारा है वो कायम रहना चाहिए गुजरात में और पूरे हिंदुस्तान में। मैं नहीं चाहता कि हमारे हिंदुस्तान में कहीं भी, गुजरात के छोड़ो कहीं भी होना चाहिए। तो इसलिए मैंने खास तो 112 पे फ़ोन किया था कि आज अगर ये नहीं हुआ तो फिर कल और भी कुछ हो सकता है, तो इसलिए मैंने खास ये किया भाई। ये है जागरूक नागरिक। जिस तरह से सोहेल शेख ने 112 पर जब कॉल किया, PCR वैन को बुलाया गया, वहाँ जो माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही थी असामाजिक तत्वों के द्वारा। GJ8 नंबर की 4 व्हील में वो लोग आए थे, शराब की बोतल बाकायदा अंदर जो है कार में मौजूद थी, एक बेसबॉल का स्टिक मौजूद था और ऐसे समय पर वो हाथ में अपने आप को अधिकारी समझता हुआ लोगों को वहाँ से भगा रहा था। पिछले दिनों में एक स्लोगन ये सिद्ध हुआ था कि जो है अहमदाबाद को ये कहा गया था कि सब सलामत का एक स्लोगन चला था। GS मलिक साहब कमिश्नर थे, अब GS मलिक साहब DG बन चुके हैं, प्रमोशन हुआ है। अहमदाबाद को सलामती तरफ ले जाने के लिए काफ़ी पहल की गई है। अब पुलिस अधिकारी को ये समझना होगा कि ऐसे मामलों में कड़क से कड़क एप्लीकेशन, कड़क से कड़क धाराओं में जो है फरियाद दर्ज होनी चाहिए, ताकि ऐसे असामाजिक तत्व जो अहमदाबाद शहर का माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। SDPI से हमारे साथ अबरार पंजाबी मौजूद है, अजीत सैयद AIMIM से मौजूद है। दोनों से हम बात करते हैं, कब आप पहुँचे, कितने बजे की घटना है, कैसे आपको जानकारी हुई? ये तकरीबन 1 बजे के बाद की घटना है। लेकिन सबसे पहले तो सवाल ये होता है कि गुजरात दारूबंदी और गांधी का गुजरात कहा जाता है, जहाँ पे दारू कैसे आई। ये हमारे सामने वीडियो है जिसके अंदर साफ दिखाई दे रहा है कि दारू की बोतल इनकी गाड़ी में से मिलती है। उसके अलावा देखिए
ये दारू गाड़ी में भी है, गाड़ी में भी वीडियो उतारी गई है, ये तमाम चीज़ें। और उसके साथ साथ ये देखिए पुलिस की मौजूदगी है यहाँ पे, ये पुलिस भी वहाँ पे मौजूद है। ये लोगों की अवेयरनेस है कि लोगों ने सारी वीडियो उतारी है। लेकिन उसके बाद होता ये है कि पुलिस आती है तो उसमें से 2 में से 1 बंदा गाड़ी में से शराब की बोतल लेके, पब्लिक ने आंखों से देखा है, वहाँ पे लोगों ने अगर सीसीटीवी चेक किए जाए तो दारू की बोतल जो है वो आगे वाली जो पीसीआर होती है उसमें कोई आदमी है उसको जाके दे देते और वो एविडेंस को हटा देते हैं। मतलब कि ये कहीं ना कहीं सबूत मिटाने का भी काम किया गया है। दारू का टेस्ट होगा वो अलग चीज़ है, दारू पीने वाले पे अलग कलम लगती है और दारू होने में अलग है। प्रोहिबिशन एक्ट जो है उसके हिसाब से लोगों को पासा दी जाती है। आज दारूबंदी होने के बावजूद दारू कहाँ से आई, पहले तो सवाल ये उठता है। उसके बाद पुलिस स्टेशन में हमारे आने के बाद पुलिस हमसे सवाल करती है कि भाई आपको ये राइट किसने दिया लोगों को रोकने का, जो कि मैंने तो उनको रोका ही नहीं था। ये तो आवाम थी जो अवेयर थी जिन्होंने रोका है। कल कोर्ट के अगर कोई किसी पे जुल्म होता है, मर्डर होता है तो पुलिस का ये कहना है कि आप मर्डर होने दीजिए अपनी आंखों के सामने, उसको रोकिए मत। अगर रोकने जाएंगे तो पुलिस आपसे पहले सवाल करेगी भाई तुम वो मर्डर रोकने क्यों गए, आप पे गुनाह भी दाखिल हो सकता है। उसके अलावा कुछ संगठन के लोग हैं जो अपने आप को बजरंग दल का बता रहे हैं, ये मेरा कहना नहीं उनका ही कहना था। उनकी गाड़ी में से भगवा झंडा मिलता है जिसके अंदर आप खुद वाकिफ़ है कि भगवा झंडा किस गाड़ियों में होता है। और सबसे पहले तो सवाल ये है कि ये अपने आप को बजरंग दल कहते हैं लेकिन दारू पिए हुए हालत में पब्लिक के अंदर डर का भय का माहौल पैदा करते हैं। तो पुलिस को प्रोहिबिशन एक्ट, उसके अलावा जो हथियार होता है, बेसबॉल का डंडा हो, छुरी हो, चाकू हो, पुलिस वैसे कॉम्बिंग करके लोगों के घरों से हथियार लेती है और उन पर गुनाह दाखिल करती है। ये हुआ है, इसके पहले डीसीपी साहब डेलू साहब ने भी किया हुआ था, उसके बाद प्रेमसुख डेलू के अलावा दूसरे भी जो लोग आए थे उन्होंने भी किया है। लेकिन पुलिस ने यहाँ पे सिर्फ पुलिस की हमें ये सेटिस्फेक्शन नहीं है। हमें ये बहुत ही अजीब लगा कि सिर्फ प्रोहिबिशन का एक्ट लगाकर उनको मेडिकल के लिए लिया जाएगा, लेकिन दारू की बोतल का एविडेंस, उसके अलावा जो बेसबॉल का डंडा वो, उसके अलावा उसने यूँ समझिए कि लोगों को बकायदा घर्षण करने की कोशिश की। यहाँ पे कम्युनल क्लैश हो सकता था। कुछ लोग जो वहाँ पे मौजूद थे जो अभी यहाँ पे उनका कहना भी था कि ये लोग जेएसआर के नारे भी लगा रहे थे। अब मैं ये कहता हूँ उन लोगों का कहना नहीं है, मेरे साथ अभी पुलिस स्टेशन में ऐसा हुआ। मैंने जब उसको एक बात की तो उसने खुद ने मेरे सामने जेएसआर का नारा लगाया और ये बोलता है कि बोले ज्वलित जो है मेरा बजरंग दल का जो कोई है वो बोले मेरा चाचा है, मेरा भाई है। तो कहीं ना कहीं हमारे जैसे लोगों को भी अगर ये डराने की कोशिश कर रहे हैं तो हम डरने वाले नहीं है, क्योंकि डरने का डीएनए जो सावरकर की औलाद में, टीपू सुल्तान की औलाद में नहीं है। इसलिए शहर का जो अमन, भाईचारा और मोहब्बत खराब करने की कोशिश करे हो, चाहे किसी भी दल से हो या किसी भी संगठन से हो, हम ये होने नहीं देंगे। और पुलिस प्रशासन से हमारी गुजारिश है कि जहाँ पे पुलिस वालों के साथ भी बदतमीजी हुई, वहाँ के हेड कांस्टेबल जो चाचा थे उनको भी गाली दी गई, पूरी तपास हो, इंक्वायरी बिठाई जाए किस संगठन से थे, इनका मकसद क्या था, लोगों को डराना था, मारना था, माहौल ख़राब करना था या शहर के अंदर आने वाले त्योहारों को ख़राब करना था। अगर पुलिस इसकी जाँच करती है तो हम पुलिस के साथ हमेशा थे और रहेंगे, यही हमारी बात है। चलिए, प्रोहिबिशन एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत जो है कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी अबरार पंजाबी एसडीपीआई से आते हैं, उनकी मांग है। और इस मामले में जिस तरह से गंभीरता बताई जा रही है कि अपने आप को बजरंग दल के लोग बताए जा रहे थे, तो ये बजरंग दल के लिए भी एक बड़ा सवाल है कि उनको भी पुलिस को ये जो है आह्वान करना होगा कि पुलिस पहले तो ये तपास करे कि बजरंग दल का क्या नाम लिया जा रहा है या सही में वो लोग बजरंग दल के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो अपने आप को ज्वलित मेहता का भतीजा बताता है, ज्वलित मेहता को अपना जो है अंकल बताता है। अजीत सैयद हमारे साथ मौजूद है, AIMIM से संगठन मंत्री। कैसे देखते हो, कब पहुँचे आप और क्या मांग है? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अजीत सैयद AIMIM पार्टी से गुजरात संगठन मंत्री। जी मैं वहाँ से गुजर रहा था तो मुझे देखा कि काफ़ी भीड़ थी और एक जो शख्स था वो नशे की हालत में सबको गाली गलौज कर रहा था। तो मैंने गाड़ी साइड में रुका के, हमारे जो सोहेल भाई है इनसे मुलाकात हुई थी, तो इन्होंने बोला कि भाई हमारी फैमिली को कुछ डंडे वगैरह बुला के उन्हें कोई नारे लगा के इनको हटाने की कोशिश कर रहा था, जितने भी लोग वहाँ पे बैठे थे। तो अबरार भाई से भी मुझे मुलाकात हुई। हमने तुरंत ही उसी टाइम पे बोला कि आप कॉल करो। 112 पे कॉल करके हमने उनको कस्टडी में लाया, रिवर फ्रंट जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे उसको अरेस्ट करवाए। पर यहाँ पे आने के बावजूद जब हमने देखा तो पुलिस भी उसका थोड़ा सपोर्ट कर रही थी और हमारे सामने क्रॉस फरियाद करने की बात कर रहे थे। कहने को हम आम जनता है, हम पब्लिक के सपोर्ट में रहकर हमने डायरेक्ट ही पुलिस का सहारा लिया, मगर पुलिस ही अगर हमारे को सहारा नहीं देगी तो फिर हम किसके पास जाएंगे। अभी आप जानते हो कि जिस तरह भी जो देश का माहौल है और जो गुजरात का माहौल है, रथ यात्रा का टाइम चल रहा है, अभी जो भी असामाजिक तत्व है जो माहौल बिगाड़ने की जो हरकत कर रहे हैं, तो हम पुलिस प्रशासन से यही मांगनी चाहेंगे कि ऐसे असामाजिक तत्वों पे, दारूबंदी पे आप रोक लगाया जाए कि आने वाले टाइम में जो रथ यात्रा है वो शांतिपूर्ण होवे। हम यही चाहते हैं और मुस्लिम पूरा समाज यही चाहता है कि रथ यात्रा हमेशा जो शांति से निकलती है इसी तरह निकले, मगर कुछ दल के लोग
वो ये नहीं चाहते कि अहमदाबाद और गुजरात में शांति बनाए रखे, मगर वो लोगों के दिलों में, उन लोगों के दिमाग में कुछ और चल रहा है, वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं। हमें लगता है कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो शख्स जो पकड़ाया है, जो ड्रिंकिंग करते हुए, इसका भी मकसद कुछ ना कुछ और होगा। तो ये तो हमने समझदारी वापरी कि उसको सामने क्रॉस नहीं करा, ना कोई गाली गलौज हुई, ना कोई बंदे ने हमारा उसको कोई लाफा मारा। बस पुलिस का सहारा लेके हम लोग उसको अरेस्ट करवाए। बस पुलिस प्रशासन से यही मांगनी है कि जो भी है ये इस चीज़ की जांच होनी चाहिए और कहीं ना कहीं हद तक इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जी चलिए, यही कहेंगे कि सब सलामत का दावा सिद्ध हुआ और जो है जीएस मलिक साहब का प्रमोशन हुआ। तो फिर कौन है यह असामाजिक तत्व जो सब सलामती के दावे को गलत साबित करना चाहते हैं, अहमदाबाद के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। और ऐसे समय पर जब मुहर्रम और रथ यात्रा जैसे त्यौहार कुछ ही अंतर में आने वाले हैं और उसके चलते शहर के माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। प्रोहिबिशन एक्ट की बात की जाए तो प्रोहिबिशन से पूरा शहर प्रताड़ित है। 2 दिन पहले की अगर बात की जाए तो रानी पुलिस स्टेशन का घेराव किया गया था। आसपास के लोग, इलाके के लोग जो है बुटलेगरों से परेशान थे, उन्होंने पुलिस स्टेशन का घेराव किया और उनकी भी यही मांग थी कि शराब आती कहाँ से और जहाँ से शराब आती है वह शराब जो है बंद होनी चाहिए, बुटलेगरों पर कड़क एक्शन होनी चाहिए। तो हमारे चैनल के माध्यम से भी पुलिस प्रशासन को ये मांग है कि आप लोगों को सबसे पहले तो जो है नशाहित प्रवृत्ति करने वालों को हिरासत में लेना होगा, बुटलेगरों के जो अड्डे हैं उनको ख़त्म करने होंगे, तब जाके शहर भर का माहौल जो है शांतिमय वातावरण में तब्दील होगा। जिस तरह से ये लोग जागरूक नागरिक बनकर सामने आए और लोगों की मदद की, यदि ये लोग वहाँ समय से नहीं पहुँचते या कुछ लोग वहाँ पर मौजूद नहीं होते तो शहर के माहौल को ख़राब करने में कुछ समय ही बचा था। और ऐसे समय पर ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और पूरे माहौल को कंट्रोल करते हैं। बजरंग दल को फिर एक बार मैसेज देना चाहेंगे कि आपके नाम से घूमने वाले ऐसे शख्स की भी जांच होनी चाहिए जो आपका नाम लिया करते हैं और बजरंग दल जैसे दल के नामों से लोगों को प्रताड़ित करते हैं। तो सबसे पहले आप पुलिस को भी आह्वान कीजिए कि कौन है ऐसे लोग, कौन है ऐसे सामाजिक तत्व जो दलों का नाम लेकर एक समुदाय है उसके अंदर डर का माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं। आने वाले दिनों में ये देखा जाएगा कि इस मामले में रिवरफ्रंट पुलिस किस गंभीरता से मामले को दर्ज करती है और आरोपियों को किन धाराओं में हिरासत में लेती है। तो पुलिस प्रशासन से ये मांग है हमारी वीडियो के माध्यम से कि जो है शराब पीकर गाड़ी चलाना कितना हानिकारक हो सकता है। कल की अगर बात की जाए तो बापू नगर स्थित में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 7-8 लोगों को कुचला गया था। एक जो है लेडीज़ की जो है मौत हुई थी। इसके पहले की अगर बात की जाए तो तथ्य पटेल ने जिस तरह से शराब पीकर शराब के नशे में ड्रिंक एंड ड्राइव किया कितना हानिकारक था, जिसमें लगभग जो है 7-8 लोगों की मौत हुई थी। ऐसे मामलों में ट्रैफिक पुलिस को भी, ठीक है रिवरफ्रंट पुलिस ने असामाजिक तत्वों पर जो है माहौल ख़राब करने के लिए जो है एप्लीकेशन तो ली है, लेकिन इस मामले में ट्रैफिक पुलिस को भी इस मामले में एंटर होना पड़ेगा और जो है शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर कड़क से कड़क एक्शन लेनी होगी ताकि अहमदाबाद में जो ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले होते हैं उसको कहीं अंश तक रोका जाएगा। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।